کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی پوری قوم آج یوم یکجہتی کشمیر منا رہی ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے کشمیریوں کے حق خودارادیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ کشمیر اور پاکستان دو قالب یکجان، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن۔ صدر مملکت عارف الوی نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا اور کہا کہ کشمیری عوام کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل اور تشدد میں ملوث ہے۔ بھارت کا ظالمانہ رویہ جبری گمشدگیوں اور پیلٹ گن کے استعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی حمایت کے عزم کی تشدید کی اور کہا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر سب سے پرانے حل طلب مسائل میں سے ایک ہے۔ بھارت نے کرفیو، بلیک آؤٹ، نظر بندی، قید اور بنیادی حقوق سے انکار کیا۔ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ خارجہ بلاول بھٹو نے کشمیری بہن بھائیوں کی قربانیوں کو سلام پیش کیا اور کہا کہ کشمیری عوام 75 برس سے وحشیانہ بھارتی جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔ کشمیری مسلسل خوف کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے بھارت کے غیر انسانی سلوک کی بھرپور مذمت کی اور کہا کہ پاکستانی قوم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ کشمیری لاک ڈاؤن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اقوام عالم کو کشمیریوں کے دکھ درد کا احساس ہونا چاہیے۔ بھارتی مظالم پر اقوام عالم کی خاموشی کا کوئی جواز نہیں۔ کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ ہیں۔ آزادی کے حصول تک کشمیریوں کا ساتھ دینا ایمان کا حصہ ہے۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، کہتی ہیں کشمیریوں کی لازوال جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ ہیں۔ آزادی کے حصول تک کشمیریوں کا ساتھ دینا ایمان کا حصہ ہے۔ سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، زمان پاک کے بغیر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی۔ ریلی کے شرکاء کی کشمیریوں کے حق اور مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی۔ تفصیلات جانتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، اس ریلی کا احوال بتائیے۔ لیاقت سے رابطہ منقطع ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے ریلی نکالی گئی ہے اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کارکنان کی جانب سے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے گئے ہیں۔ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا ہمارا فرض ہے، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا الحمرا میں تقریب سے خطاب۔ بھارت مظلوم کشمیریوں کی آواز کو دبا نہیں سکتا۔ اقوام متحدہ کشمیر سے متعلق قراردادوں پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہے۔ عالمی تنظیموں کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لینا چاہیے۔ وہ کشمیری جنہوں نے پاکستان کے قیام کے وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کیا اور اس جرم کی پاداش میں آج تک ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کے ساتھ اب ہم سب کا فرض ہے کہ پوری طاقت سے دامیں درمیں سخنے ہم ان کا ساتھ دیں۔ بدقسمتی سے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں کشمیر میں آزادانہ اور منصفانہ استصواب رائے کی اقوام متحدہ کے کمیشن برائے ہندوستان اور پاکستان کی 5 جنوری سن 1949 میں پاس ہونے والی قرارداد پر تاحال عمل درآمد کرانے میں بری طرح ناکام رہی۔ 5 اگست 2019 کو مودی حکومت نے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کی دفعات کو منسوخ کر کے مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کو ان کے حق کے خود ارادیت سے محروم کرنے کا جو گھنانہ قدم اٹھایا ہے، انشاءاللہ وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ عمران خان نے کشمیر کو انڈیا کے ہاتھوں بیچ دیا۔ بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تو عمران خان خاموش رہے۔ رہنما نون لیگ خواجہ عمران نذیر کا ریلی سے خطاب، مزید بولے لاڈلے نے 4 سال میں اتنا قرض لیا جتنا ملک کی تاریخ میں نہیں لیا گیا۔ عمران خان کی جھوٹی طبیعت کی وجہ سے IMF ہم پر اعتماد نہیں کر رہی۔
पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, तुम पूरी कौम को जो जो वादा करके गए उससे मुकर गए, लेकिन खुदा के वास्ते कश्मीरियों के साथ ये जुल्म न करना, उनकी बेटियों, उनकी बहनों, उनके बेटों के खून के साथ ये सौदा न करना। लेकिन हस्बे रवायत इमरान खान साहब, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, आपके सपोर्टर से भी पूछूंगा कि आर्टिकल 370 का जो मामला है वो ना नवाज शरीफ के दौर में करने की भारत जुर्रत कर सका, जिसको तुम मोदी का यार और कभी वाजपेयी का यार कहते थे, ना किसी डिक्टेटर के दौर में जुर्रत कर सका। अगर वो जुर्रत हुई, इंडिया ने अमलन कश्मीर को अपने साथ शामिल किया, वो जुर्रत हुई, तो इमरान खान तुम्हारे दौर में वो जुर्रत हुई और तुमने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। तुमने पैसे जलसों में उड़ा दिए, तुमने पैसे 8 अरब रुपया सोशल मीडिया के नाम पर अपनी पार्टी पर लगा दिया, जो सरकार का पैसा था, जो दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को दिया गया था, उन पैसों से तुमने सियासत चमका ली। आज अपनी टूटी टांग का प्लास्टर लेके 4 महीने से खुद तो घर में बैठे हो, लेकिन मेरे मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया है। जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने हर प्लेटफॉर्म पर कश्मीर की आवाज़ उठाई। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी कश्मीरियों के साथ खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा असलम गिल का रैली के शुरका से खिताब, बोले बहुत जल्द कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीरी एक आज़ाद मुल्क में रहेंगे। कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद कायद जुल्फिकार अली भुट्टो और जनाब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने बैन अल-अक़वामी फोरम पर कश्मीरियों के साथ उनकी आज़ादी के लिए, उनको बावकार रहने के लिए उनके साथ जद्दोजहद की, उनकी आवाज बने और दुनिया में उनको बावर कराया कि कश्मीरियों के साथ भारत की हुकूमत बहुत जुल्म और तशद्दुद करती है। जो वहां पर उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसका बदला लेने के लिए हमारी क़यादत पीपल्स पार्टी, सारे पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे इत्माम हमारी चेयरमैन बिलावल भुट्टो, वज़ीर खारजा पाकिस्तान, आज भी कश्मीरियों की आज़ादी के लिए, चाहे अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोप हो, पर दुनिया के तमाम ममालिक में जाकर वो कश्मीर की आज़ादी की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मॉडल बाज़ारों में रैलियों का इनेकाद किया गया। मॉडल बाज़ारों में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासिबत से फ्लेक्सेस आवेज़ा की गईं। रैली में मॉडल बाज़ार इंतज़ामिया और दुकानदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, रैली का अहवाल बताइए। कश्मीर डे के हवाले से सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज की जानिब से जो है वो हदायत की गई थी कि पंजाब भर के तमाम मॉडल बाज़ारों में कश्मीर के साथ यौम यकजहती के तौर पर जो है रैलियों का अहतमाम किया जाए। लाहौर समेत पंजाब भर के मॉडल बाज़ारों में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया और यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मॉडल बाज़ारों में रैलियों का भी इनेकाद किया गया। CEO अहमद अयाज का कहना है कि मॉडल बाज़ारों में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से फ्लैक्सेस भी आवेज़ा किए गए। रैली में मॉडल बाज़ार इंतज़ामिया, दुकानदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। CEO मॉडल बाज़ार अहमद अयाज का कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म और सितम को फिलफोर बंद किया जाए। और इस हवाले से उनका ये कहना था कि मॉडल बाज़ार में सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने की भी हदायत जारी की गई हैं, जबकि मॉडल बाज़ारों में आज इंतजामिया की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से बैनर्स भी आवेज़ा किए गए हैं। शुक्रिया अब्दुल कादिर। लाहौर बोर्ड में यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया गया। मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल्स के तलबा के मबैन तकरीरी मुकाबले मुनक़्क़िद किए गए। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। आतिफ परवेज़ से तफसीलात जान लेते हैं। आतिफ परवेज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज शहर भर में जो है मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर जो है भरपूर तरीके से मनाया गया और लाहौर बोर्ड में भी इसी तरीके से ख़ुसूसी तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जहाँ बच्चों के दरमियान जो है तकरीरी मुकाबले
मुनक्किद किए कि इन तकरीरी मुकाबलों में मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूलों के तलबा ने शिरकत की और जिन्हें कश्मीर की अहमियत और कुर्बानियों पर अपने अंदाज में इजहार ख्याल किया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर मिर्जा हबीब जो कि चेयरमैन लाहौर बोर्ड हैं, उन्होंने शिरकत की और इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि अमन और सलामती और तरक्की का इन्हिसार जम्मू कश्मीर के पुरअमन हाल में है। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी को सामने रखकर कश्मीर की बेटियां अपनी आज़ादी के लिए कुर्बानियां दे रही हैं। कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती करना जो है वो ज़रूरी है और ये हर पाकिस्तानी शुक्रिया आतिफ। है। सर्विसेज हस्पताल में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासिबत से रैली का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर फारूक अफजल और MS सर्विसेज हस्पताल डॉक्टर मुख्तार अहमद ने रैली की क़ियादत की। रैली के शुरका की कश्मीरी अवाम के हक में नारेबाजी। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज सर्विसेज हस्पताल में भी यौम यकजहती कश्मीर की मुनासिबत से रैली का इनेकाद किया गया और रैली की क़ियादत प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर फारूक अफजल MS सर्विसेज हस्पताल डॉक्टर मुख्तार ने की, जबकि रैली में प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज सर्विसेज हस्पताल में जो तलबा और पैरामेडिक की कसीर तादाद में मौजूद थे और रैली के शुरुआत इन्होंने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के बैनर्स उठा रखे थे और ये रोड पर वॉक की और कश्मीरी अवाम के हक में नारेबाजी भी की। इस मौके पर प्रोफेसर अमजद ने शुरुआत के तरीके पाकिस्तान और यौम यकजहती कश्मीर का खिताब भी किया और प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर फारूक अफजल का ये कहना था कि पाकिस्तानी अवाम कश्मीर के साथ खड़ी है और कश्मीरियों की जो आज़ादी के लिए पाकिस्तानी अवाम हर जो है ये मुमकिन इक़दाम करेगी। जी शुक्रिया मोहम्मद बिलाल। लाहौर पुलिस का कश्मीरी भाइयों की कुर्बानियों को खराज अकीदत कश्मीर के झंडे लहराकर कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती किया। लाहौर पुलिस के जवानों की मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए खसूसी दुआएं। 2000 से ज़ायद एहलकारों ने यकजहती कश्मीर रैलियों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की। मुदस्सिर हुसैन से तफसीलात जान लेते हैं। मुदस्सिर हुसैन, अपडेट कीजिएगा। लाहौर पुलिस का कश्मीर भाइयों की कुर्बानी को जो है वो खराज अकीदत जो है वो पेश किया गया और इसमें खूबसूरत अंदाज में कश्मीरी अवाम की दिलेना जद्दोजहद को जो है वो सलाम पेश किया है। अपनी अफसरान और जवानों ने भरपूर सिक्योरिटी फराहम करते हुए यौम यकजहती कश्मीर जोश जज्बे से जो है वो मनाया है। अपनी अफसरान और एहलकारों ने कश्मीरी झंडे जो है वो लहरा कर कश्मीर भाइयों के साथ इजहारे जो है वो यकजहती किया। लाहौर पुलिस के जवानों ने मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए दूसरी दुआएं की और नारे भी लगाए। 2000 से ज़्यादा पुलिस एहलकारों ने यौम यकजहती कश्मीर की रैलियों और प्रोग्रामों को भरपूर जो है वो सिक्योरिटी फराहम की। इस वजह से सिटी लाहौर बिलाल सदीक मैंने कहना है कि लाहौर पुलिस के कश्मीरी बहन भाइयों को तरीके आज़ादी के किसी मरहले में तनहा नहीं छोड़ेंगे। पुलिस अफसरान यौम यकजहती कश्मीर पर सिक्योरिटी और ट्रैफिक के फुलफरूख जो है वह इंतजाम किए गए हैं। सिटी लाहौर का मजीद कहना था कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। SP DSP SHO समेत 2000 से ज़्यादा एहलकार जो हैं वो कश्मीर रैलियों की जो है वो सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। जी शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जाती उम्रा से मुल्तान के लिए रवाना हुई। मरियम नवाज की रवानगी से कबल बकरे का सदका दिया गया। मरियम नवाज मुल्तान में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मजीद जानते हैं राहिल अली से। राहिल, अपडेट कीजिए। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ लाहौर से मुल्तान के लिए रवाना हो गई हैं। जाती उम्रा से जो है वो उनका काफ़िला निकला है, लेकिन वो बज़रिया जहाज़ जो है वो आज मुल्तान पहुंचेंगी, जहां पर वो वर्कर कन्वेंशन से जो है वो खिताब करेंगी। मरियम नवाज़ जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो तंजीमी दौरे करें और ये दौरा भी जो है वो इसी हवाले से उसी की कड़ी है। और आज जो है वर्कर कन्वेंशन से खिताब करने के बाद कल जो है वो तंजीमी अहदेदारों से भी जो है वो मुलाकातें करेंगी, ताकि इंतखाबात से कबल जो है वो मुस्लिम लीग नून को जो है उनके कारकुनों को जो है मुतारिक किया जा सके। तंजीमी अहदेदारों से बातचीत की जाएगी, उन्हें मुख्तलिफ जो है वो टास्क दिए जाएंगे, ताकि मुस्लिम लीग नून को जो है वो उनके कारकुनों को जो है वो दोबारा से पुरजोश किया जा सके, उनको इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से जो है वो आगाही दी जा सके, उनको जो है मुशावरत की जा सके। तो इसी हवाले से दौरों का शेड्यूल जो है उनका जारी कर दिया गया। तो और आज मरियम नवाज़ 2 रोज़ा मुल्तान के दौरे के लिए जो है वो लाहौर से रवाना हो चुकी हैं। उनके दौरे से लाहौर से निकलने से कबल जो सीनियर क़यादत थी, खुसूसन परवेज़ रशीद जो है उन्होंने उनसे मुलाकात की। उसके अलावा जो मुकामी क़यादत थी उन्होंने भी जो है वो मरियम नवाज़ से मुलाकात की। जैसे उनका काफ़िला बाहर निकला तो जो मुकामी MP मिर्ज़ा जावेद, उनकी जानिब से सदक़े का बकरा भी जो है वो कुर्बान किया गया, जिसके बाद मरियम नवाज़ का काफ़िला जो है वो एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ है। वहाँ से बज़रिया जहाज़ जो है वो 2 रोज़ा दौरे के लिए मुल्तान के लिए जो है वो रवाना हो जाएंगी। जी शुक्रिया राहिल अली। पाकिस्तान में मुखलिस लोगों की कमी नहीं, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का तकरीब से खिताब। कहा, लोग अरबों रुपए चैरिटी करते हैं, दुख है हुकूमतें चैरिटी का काम नहीं करती।
ہمیں مل کے کام جو ہے کرنا چاہیے. ماشاءاللہ پاکستان میں ہمارے جنرس افراد کی کمی نہیں. میں آپ کو بتاؤں اتنے لوگ ہمارے ملک میں جنرس ہیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. اربوں روپے کے یہ چارٹی دیتے ہیں, مدد کرتے ہیں, مصیبت میں کام آتے ہیں. لیکن ایک بات بڑی ہیوی ہارٹ میں کہوں گا, کیونکہ یہ نان پولیٹیکل فورم ہے, پولیٹکس اس میں نہیں لینا چاہتا, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری 16 آرگنائزیشن گورنمنٹ فنڈنگ آرگنائزیشن نہیں ہے. یہ ساری آرگنائزیشنز ہمیں لوگ چارٹی دیتے ہیں. جیسے آج ماشاءاللہ گلاسگو کے لوگوں کی بھی بڑی یہاں کنٹریبیوشن ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری 16 آرگنائزیشن جو ہیں ان کے لاکھوں والنٹیئر جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں, وہ سندھ کے تمام ان علاقوں میں جہاں پانی 20-20 فٹ کھڑا تھا وہاں پر, ساؤتھ پنجاب میں. سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے زیر اہتمام کینسر کون 2023 کا انعقاد. نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی بطور مہمان خاص شرکت. ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ کینسر کا علاج متوسط گھرانوں کے لیے بڑا مہنگا ہو گیا ہے. پنجاب کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کینسر کون 2023 کے حوالے سے. یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور آپ کو یہ بتائیں کہ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے بطور مہمان خاص شرکت کی ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ کینسر کا علاج متوسط گھرانوں کے لیے بہت مہنگا ہوتا ہے. پنجاب کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے زیر اہتمام کینسر کون 2023 کا انعقاد کیا گیا ہے. اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں محمد بلال سے. محمد بلال, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, نگران صوبائی وزیر سے ڈاکٹر جاوید اکرم کی سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے زیر اہتمام کینسر کون 2023 میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اس موقع پر پرنسپل سینس پروفیسر فاروق افضل سمیت جو فیکلٹی ممبران کی کثیر تعداد میں موجود تھے. اس موقع پر صوبائی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی پنجاب کی عوام کا بنیادی حق ہے, اور کینسر کا علاج متوسط گھرانوں کے لیے بہت مہنگا ہوتا ہے. اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی عوام کو صحت کی ہر قسم کی سہولت فراہم کرنا چاہتے ہیں, جبکہ نگران وزیر اعلیٰ نے عوام دوست سوچ کے پیش نظر ہی کارڈیالوجی ہسپتالوں میں مریضوں کو پرائمری اینجیوپلاسٹی کی 24/7 شکریہ بلال. فی الوقت اتنا ہی.